अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। We start our lecture of General Science, lecture number 6. In this lecture, first of all, we do the exercise of chapter 2 and then we will study the topic of the chapter 3. First of all, I will repeat the MCQs and and do the exercise of chapter number 2. In chapter number 2, cell division, first of all, there is a MCQs in circle the correct option. MCQs number 1. Cell make copies of its chromosome during A option is interphase, B option is nuclear division or mitosis, C option is nuclear division or meiosis, and D option is cytokinesis. So, as you know that cell makes copies of its chromosomes during the interphase. Okay. So option number MCQs number 1, option A is the right answer. MCQs number 2, the section of DNA which has information for making a specific protein is called the S section of DNA जिसके पास कुछ specific protein जिसके पास कुछ information होती है कि वो specific protein को बनाए, उसे क्या कहते हैं? A option DNA strand, B option nucleotide, C chromosomes, D gene. आप as you know that ये पता है कि जो सेक्शन ऑफ डीएनए जिसके पास दैट हैज सम इंफॉर्मेशन वो किसके लिए होती है फॉर मेकिंग अ स्पेसिफिक प्रोटीन, उसको क्या कहते हैं? जीन कहते हैं. सो MCQs to option number D is the right answer. Third MCQs is chromosomes are made of. क्रोमोसोम किसके बनते हैं, किससे बनते हैं? ऑप्शन ए डीएनए ओनली, बी प्रोटीन ओनली, सी डीएनए प्रोटीन एंड फैट्स, डी डीएनए एंड प्रोटीन. As you know that chromosomes are made up of DNA and protein. So our D option is the right answer for the MCQs number 3. Similarly, go for the MCQs number 4. The characteristics which pass from parents to offspring. उसे क्या कहते हैं? As you know that characteristics which are passed from parents to the offspring is called the inheritable characteristics. Option A, inheritable characters, B, non-inheritable characters, C, environmental characters, and D, natural characters. So option A is the right answer, inheritable characters. MCQ number 5, an event that occurred during interphase. As you know that copies of duplication of chromosomes means interphase में develop हो रही होती हैं. So 5 MCQs number 5, C option is the right answer. Now for MCQs number 6, reduction of chromosomes takes place. Reduction of chromosomes
takes place होते हैं. A option is mitosis, B meiotic 1, C meiotic 2, and D both mitosis and meiotic 2. So reduction of chromosomes takes place होती है during meiotic 1. So MCQs number 6 B. MCQs number 7. Human or sperm has 23 chromosomes. Egg cell has, as you know, the total number of chromosomes are, which is equal to 46. 23 chromosomes in sperm has 23 chromosomes, so egg cell has remaining 23 chromosomes. Option A 23 chromosomes, option B 46 chromosomes, option C no chromosomes, and D 69 chromosomes. So option A is the right answer, 23 chromosomes. So 7 MCQs is the right answer. MCQs number 8. Zygote is formed by the fusion of A. Two sperm cell, B. Two egg cell, C. Two somatic cell, and D. Sperm cell and egg cell. So option D is the right answer, sperm cell and egg cell. In human, MCQs number 9. In human, eye color is developed due to the effect of option A. Diet, B. Environment, C. Gene, and D. Both A and B. Eye color is affected due to the effect of genes. So, MCQs number 9, C option is the right answer. MCQs number 10, which statement is correct? Option A, DNA has instruction for making protein. Protein has instruction for making DNA. नहीं, ये इस तरह नहीं होता. DNA के पास instruction होती है वो protein को बनाए. C, both of these, G, none of these. So, option A is the right answer. DNA instruction for making the protein. Similarly, we move towards the short questions. Short question की तरफ move होते हैं. Give short question. Short question number 1. Name two inheritable characters. दो inheritable characters के नाम बताएं. Inheritable characters वो होते हैं the transmission of such characteristics from parents to the offspring is known as is known as is known as is, is known as inheritable characters. Inheritable characters, eye color and the attached or detached earlobe. आंसर आई कलर जो है ये इनहेरिटेबल करेक्टर्स. क्यों? ये फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग होते हैं. अटैच और दूसरा अटैच और डिटैच ईयर लॉब्स, ये भी ऐसे करेक्टरिस्टिक्स हैं जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होते हैं. शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2. नेम टू नॉन इनहेरिटेबल करेक्टर्स. दो नॉन इनहेरिटेबल्स करेक्टर्स के बारे में बताएं. नॉन इनहेरिटेबल्स करेक्टर्स. नॉन इनहेरिटेबल्स करेक्टर्स. नॉन इनहेरिटेबल करेक्टर्स. नॉन इनहेरिटेबल करेक्टर्स वो होते हैं, वो वाले करेक्टरिस्टिक्स जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर नहीं होती. एक है इंटेलिजेंस, जो ट्रांसफर नहीं होती है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग. इंटेलिजेंस एक ऐसा फैक्टर है जो ट्रांसफर नहीं होता है. या लॉस्ट और वीकेंड बॉडी पार्ट. लेट्स सपोज अगर पेरेंट्स का कोई पार्ट वीक है तो ये ज़रूरी नहीं है कि आगे से जो ऑफस्प्रिंग होंगे उनका भी वो पार्ट वीक होगा. मीन्स दीज आर द टू non inheritable characters that are passed from that are not passed from parents to the offspring, that are the non inheritable characters. Number 1 intelligence and number 2 lost or weakened body parts. What is gene? As you know that the answer is a basic physical and functional unit of heredity. Heredity is a transmission of characteristics from parents to the offspring. बेसिक फिजिकल एंड फंक्शनल यूनिट जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? जीन कहते हैं. सो क्वेश्चन नंबर 4. डिफाइन हेरिडिटी. द transmission of characteristics from parents to the offspring
that characteristics that can be transferred from the parents to the offspring. This is known as the heredity. Okay. Now, what are haploid cell? हैप्लॉइड सेल क्या होते हैं? हैप्लॉइड सेल वो वाले होते हैं जिनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूस हाफ हो जाते हैं। इनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन विच रिड्यूस हो जाते हैं। लेट्स फॉर गैमेट्स। गैमेट्स में क्या होते हैं? स्पर्म्स होते हैं और एग सेल होते हैं। स्पर्म में क्या होता है कि हाफ स्पर्म सेल होते हैं और हाफ एग सेल होते हैं। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूस हो गए हैं हाफ। दिस इज नोन एज अ हैप्लॉइड। ओके, एग्जांपल क्या है इनकी? गैमेट्स। These are the short questions which we will discuss here. Again, I will discuss short question. Name two inheritable characters. Inheritable characters. First of all, you could know about the inheritable characters. Inheritable characters are those characters which can be passed from parents to the offspring. These are the inheritable characters. So eye color एक ऐसा करेक्टर है जो ट्रांसफर होता है फ्रॉम पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग। सिमिलरली अटैच्ड और डिटैच्ड ईयर लॉब, ये ऐसे करेक्टर्स हैं जो के ट्रांसफर होते हैं। नेम टू नॉन इनहेरिटेबल करेक्टर्स। नॉन इनहेरिटेबल करेक्टर्स मीन दैट करेक्टर्स which are not passed from parents to the offspring. These are called non inheritable characters. Number one factor is intelligence and the second factor is lost or weakened body part. ये ऐसे करेक्टर्स हैं जो पास नहीं होते हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में। ओके जी, ये ऐसे दो फैक्टर हैं। व्हाट इज जीन? जीन क्या होता है? द बेसिक फिजिकल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी को हम क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। फंक्शनल एंड फिजिकल, बेसिक फिजिकल एंड फंक्शनल यूनिट को इज नोन एज द जीन। नंबर 4 इज डिफाइन हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या है? हेरिडिटी Heredity, the transmission of characters from parents to the offspring, is known as the heredity. Okay. Next is what are haploid cells? Haploid cells वो वाले cells हैं जिनमें number of chromosome reduce हो जाते हैं half। उनको क्या कहते हैं? haploid cell कहते हैं। For example, gametes जिनमें sperm cell या egg cell होते हैं। Now move towards the next. अभी ये मैं आपको बताऊंगा कि ये किधर से स्टार्ट होना है। आपने अपने साथ बुक रखनी है और उधर से आपने मार्क कर लेना है। डिस्क्राइब द माइटोसिस 2.4 है। डिस्क्राइब माइटोसिस पेज नंबर 20 पे आप आएंगे। पेज नंबर पेज नंबर 20 पे माइटोसिस वाला जो टॉपिक है पेज नंबर 20 और 21 पे जो स्टार्ट हो रहा है। माइटोसिस इज अ प्रोसेस बाय व्हिच द पेरेंट सेल डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल with the same number of chromosomes as in the parent cell. The number of chromosomes is doubled during interphase. Two sets of chromosomes are formed, and during mitosis, when the nucleus of parent cell divides, two sets of chromosomes are distributed equally in the daughter cell, daughter nuclei. After nuclear division, a shallow growth arises in the middle. ये जितना भी टॉपिक है, this include the mitosis. नेक्स्ट 2.5 क्वेश्चन है डिस्क्राइब मियोसिस। मियोसिस के बारे में बताएं। पेज नंबर 21 पे आप देखें मियोसिस वाला जो पूरा टॉपिक है। मियोसिस इज अ प्रोसेस बाय व्हिच द न्यूक्लियस, ये आपने क्या करना है? मियोसिस वाला टॉपिक करना है। नेक्स्ट 2.6 है डिफाइन हेरिडिटी। हेरिडिटी के बारे में बताएं एंड डिस्क्राइब इट्स इंपॉर्टेंस इन ट्रांसफरिंग ऑफ करेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, और उसकी इम्पोर्टेंस बताएं। ट्रांसफरिंग ऑफ करेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग पेज नंबर 22 ओपन करें और 22 पेज नंबर ये जो इधर से स्टार्ट हो रहा है हेरिडिटी वाला टॉपिक। ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन लिविंग थिंग पास ऑन देयर करेक्टरिस्टिक्स, ये वाला पूरा पेज नंबर 22 पे ये जो पूरा टॉपिक है आखिर तक आर कॉल्ड द हेरिडिटी करेक्टर्स, इधर तक। और सिमिलरली पेज 23 पे जो है we know that children possess many features similar to those of their parents। ये क्या हैं?
ये जो आखिर तक है इसी पैराग्राफ के हैव ग्रेटर चांस ऑफ सर्वाइवल एंड कंटिन्यू देयर रेस। ये क्या है 2.6 क्वेश्चन का ये आंसर है। ओके जी, नाउ मूव टुवर्ड्स 2.7। 2.7 आपके पास क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द करेक्टर्स दैट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। तो वो करेक्टर्स बयान करेंगे जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होते हैं। पेज 25 क्लास 26, पेज 25 पर है, दैट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। ये जो टॉपिक है ट्रांसमिशन ऑफ वो वाले करेक्टर्स, ये जो आपके पास टॉपिक है इनहेरिटेबल एंड नॉन इनहेरिटेबल करेक्टर्स। ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है, द करेक्टर्स सच एज आई कलर, skin color, hair color, free or attached earlobe, height, intelligence are transmitted from parents to the such characters that are transmitted from one generation to the next generation are called inheritable characters and inheritable characters are controlled by gene। इधर तक आपने करना है और फिर नेक्स्ट 26 पेज पर आए। ये जो पूरा दिया हुआ है 26 पेज कंप्लीट, आई कलर और अटैच और डिटैच ईयरलोब, ये कंप्लीट है फॉर 2.7 क्वेश्चन। ओके जी, 2.7 क्वेश्चन के लिए ये कंप्लीट 26 पेज कंप्लीट है और जो 25 पेज के ऊपर जो हेडिंग है इनहेरिटेबल एंड नॉन इनहेरिटेबल करेक्टर्स, ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है, द करेक्टर्स सच एज आई कलर, स्किन कलर, hair color, free or attached earlobes, height, intelligence are transmitted from parents to the offspring. Such characters that are transmitted from one generation to the next are called inheritable characters. Inheritable characters are controlled by gene। ये इधर तक, ये इधर तक और 26 पेज कंप्लीट। 2.8 है, राइट ए नोट ऑन, पहले बी ऑप्शन देखते हैं क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम आप पेज नंबर 23 पर आए, पेज नंबर 23 लास्ट पैराग्राफ जिधर से स्टार्ट हो रहा है, क्रोमोसोम्स और द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ ए सेल, दे अपीयर एज अ डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर। ये इधर से स्टार्ट हो रहा है एंड, और ये 24 पेज के एंड पे इधर ये एंड हो रहा है। बट एवरी स्पर्म और एग सेल हैज आर 23 क्रोमोसोम। 23 पेज के लास्ट पैराग्राफ से लेकर 24 पेज के फर्स्ट पैराग्राफ जिधर एंड हो रहा है, बट एवरी स्पर्म और एग सेल हैज आर 23 क्रोमोसोम। ओके जी, ये इधर तक है। सो नेक्स्ट है जी, इसका सी ऑप्शन है जीन। व्हाट इज जीन? ओपन योर पेज नंबर 23 के ऊपर आए। शुरू से स्टार्ट करना है। व्हाट इज जीन? जीन शुरू से स्टार्ट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल द बेसिक एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी इज कॉल्ड जीन। ये भी लिखना है, जीन एक्ट एज एन इंस्ट्रक्शन मेक मॉलिक्यूल कॉल्ड प्रोटीन। ये पहला पैराग्राफ पूरा लिखना है। एंड सेकंड में जीन्स आर फाउंड फिजिकली, जीन्स आर द सेक्शन ऑफ डीएनए, ये सेकंड पैराग्राफ इधर तक लिखना है एंड तक। डीएनए एंड प्रोटीन आर द कंपोनेंट्स ऑफ क्रोमोसोम्स। ये मैंने हिंट दिए हुए, द बेसिक फिजिकल यूनिट पहले अल्फाज और आखिर तक किधर है, और द कंपोनेंट्स ऑफ क्रोमोसोम मीन ये जो पहले दो पैराग्राफ हैं ये किसके बारे में, ये जीन्स के बारे में। ओके जी, क्लियर है? किसी को कोई भी कंफ्यूजन हो? नो, चैप्टर 3 की तरफ आते हैं। In chapter 3 we will discuss about the, in last lecture we will discuss about the टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी की। टेक्नोलॉजी क्या होती है? ये टेक्नोलॉजी वो होती है कि किसी भी फील्ड के बारे में नॉलेज हो, जैसे इंजीनियरिंग हो गई, मेडिसिन हो गई, कंप्यूटर की हो गई, उसको हम क्या कहते हैं? टेक्नोलॉजी कहते हैं। सिमिलरली बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है? द टेक्नोलॉजी इन विच द लिविंग थिंग्स के ऐसे यूज हो रही हों, लिविंग थिंग्स जो डिफरेंट वेज में ऐसे यूज हो रही हैं जो ह्यूमन बींग्स को हेल्प करें या एंड बेनिफिट करें। सो दिस इज नोन एज अ बायोटेक्नोलॉजी। जैसे मैंने आपको बताया था
एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये, दिस इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो यूज इन मेकिंग बेनिफिट, मेकिंग ब्रेड, योगर्ट, चीज, मेडिसन, ये इसलिए यूज होता है। एंड fermentation, tissue culture and genetic engineering, ये purpose and techniques हैं जिनमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म और जेनेटिक इंजीनियरिंग है। And the process and the techniques in which the microorganisms are used for making many industrial products and the research। जनरल जो एप्लीकेशन है बायोटेक्नोलॉजी वो किस में आती हैं? एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ये एक्चुअली आते हैं इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, आते हैं एनवायरनमेंट, आते हैं हेल्थ, आते हैं फूड, आते हैं एंड प्रोडक्शन एंड प्रिजर्वेशन आते हैं। फिर हमने पढ़ा था कि डीएनए रेप्लिकेट कैसे होता है। डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब है कि कॉपीज ऑफ डीएनए क्या होती हैं? डेवलप होती हैं। डीएनए रेप्लिकेशन दो स्टेप में होते हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि वो जो डीएनए का स्ट्रक्चर और डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है वो अनवाइंड होता है। और सेकंड स्टेप में क्या होता है, वो जो अनवाइंड है वो फिर हर एक स्ट्रैंड अपनी आइडेंटिकल कॉपीज क्रिएट करता है, और वो फिर वो जब कॉपीज क्रिएट होते हैं वो बाद में क्या हो जाती हैं? आपस में अटैच हो जाती हैं। नेक्स्ट और टॉपिक इज 3.2। इसमें हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ जीन, के जीन को हम बैक्टीरियम में कैसे इंट्रोड्यूस कराते हैं, कि उसे कैसे पुट करते हैं। ओके जी, कि जीन को हम बैक्टीरिया सेल में कैसे हम क्या करते हैं? इंट्रोड्यूस करते हैं। जीन ऑफ, एज यू नो दैट जीन एक्ट एज इंस्ट्रक्शन करता है किसी भी प्रोटीन को डेवलप करने के लिए। स्पेसिफिक सब्सटेंस व्हिच आर यूज्ड फॉर स्पेसिफिक स्ट्रक्चर एंड फिजियोलॉजिकल पर्पस इन द बॉडी। के जीन हम क्यों एक्ट करते हैं किसी भी चीज़ में, कि वो एक फिजिकल स्ट्रक्चर में वेरिएशन करने के लिए, मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए, चेंज लाने के लिए, तब हम जीन को एक्ट करते हैं। ओके, जितनी भी जेनेटिक इंजीनियरिंग थी उनमें क्या थे कि एडवांस टेक्निक यूज हुई थी। साइंटिस्ट ने जितनी भी जेनेटिक इंजीनियरिंग किसके बारे में होती है? जीन्स के बारे में होती है। साइंटिस्ट ने क्या किया था कि ये बेसिकली एडवांस टेक्निक है बायोटेक्नोलॉजी में। उन्होंने क्या किया था, एक उन्होंने जीन को आइसोलेट कर लिया था, और फिर क्या किया था, एक ऑर्गेनिज्म से उन्होंने आइसोलेट कर लिया था, जीन को अलहदा कर लिया था, और दूसरे ऑर्गेनिज्म में बैक्टीरियम सेल के जरिए इंसर्ट कर दिया था, मीन्स डाल दिया था। एक ऑर्गेनिज्म से आइसोलेट कर लिया था और दूसरे ऑर्गेनिज्म में उन्होंने इंसर्ट कर दिया था। वो जो ऑर्गेनिज्म दैट कंटेन अ फॉरेन जीन, वो वाला जो ऑर्गेनिज्म है जिसमें बाहर से जीन हम इंसर्ट करते हैं उसे क्या कहते हैं? उस ऑर्गेनिज्म को जैसे बाहर से जीन को इंसर्ट करते हैं उस सेल में, बैक्टीरियम सेल में हम तो जीन को इंसर्ट करते हैं, जीन को उसमें डालते हैं बैक्टीरियम सेल में, उसे क्या कहते हैं? ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म के आपने डेफिनेशन याद रखनी है। ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म वो वाला ऑर्गेनिज्म है जिसे हम क्या करते हैं, बाहर से हम जीन को इंसर्ट करते हैं बैक्टीरियम सेल में। दिस इज नोन एज अ ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है जी। और वो जो इंसर्टेड जीन होता है वो क्या एक्ट वो फिर वो प्रोडक्ट बनाता है उस ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म में, वो जो हमने जीन को इंसर्ट किया होता है। अभी क्वेश्चन ये होता है कि साइंटिस्ट बैक्टीरिया को ही क्यों यूज करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में, कि बैक्टीरिया सेल को ही क्यों यूज करते हैं कि उसमें जीन इंसर्ट किया जाए, ये क्यों करते हैं? एक्चुअली एक बैक्टीरिया का सेल होता है, बैक्टीरिया का सेल क्या होता है, वो बहुत सिंपली और इजीली ग्रो करता है। ठीक है जी। उसमें एक जो बैक्टीरिया का सेल होता है उसमें आप याद रखें कि उसमें क्रोमोसोम्स और प्लाज्मिड होते हैं। उसमें क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स होते हैं, डीएनए होता है और साइटोप्लाज्म होता है। ठीक है, उसमें तीन चीजें, एक बैक्टीरियम सेल में तीन चीजें आती हैं। यू मस्ट नो दैट कि एक बैक्टीरिया सेल में कितनी चीजें होती हैं? तीन चीजें होती हैं। साइटोप्लाज्म होता है, क्रोमोसोम होता है और प्लाज्मिड होता है। ठीक है जी। उसके बाद क्या करते हैं कि उस बैक्टीरियम सेल में हम क्या कर लेते हैं कि हम प्लाज्मिड को सेपरेट करते हैं। ठीक है जी। उस बैक्टीरियम सेल से प्लाज्मिड को जब हम सेपरेट कर देते हैं तो हम उसके साथ क्या करते हैं, वो जो हमने प्लाज्मिड लिया होता है उसको सेपरेट, उसके साथ हम जीन अटैच कर देते हैं। ठीक है।
फिर वो जो जब हम जीन अटैच कर लेते हैं तो फिर हम दोबारा उस प्लाज्मिड के साथ जीन अटैच हो गया उसको दोबारा क्या कर देते हैं, इंसर्ट कर देते, दोबारा उसको डाल देते हैं बैक्टीरियल सेल के अंदर। ये क्या हो रही है, ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। इस जो ये जो हम बायर वाला जीन इंसर्ट कर रहे हैं उस बैक्टीरियम सेल के अंदर, इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। दोबारा मैं आपको बता देता हूँ कि हम इसमें हम पढ़ रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ जीन इनटू बैक्टीरियम, कि हम जीन को किस तरह इंसर्ट करते हैं किसी भी बैक्टीरिया सेल में। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना है जीन क्या होती है। जीन एक स्पेसिफिक क्या एक इंस्ट्रक्शन के तौर पे एक्ट करता है, ठीक है जी, जो कि एक स्पेसिफिक सब्सटेंस बनाता है जो कि स्पेसिफिक स्ट्रक्चर और फिजियोलॉजिकल पर्पस के लिए बॉडी में यूज होता है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि एक बैक्टीरियम सेल होता है, आपने उसमें याद रखना है कि तीन चीज़ें आती हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं, प्लाज्मिड एंड साइटोप्लाज्म होते हैं। सबसे पहले हम प्लाज्मिड को क्या कर लेते हैं, प्लाज्मिड को हम बैक्टीरियम सेल से आउट ले लेते हैं। ओके, आफ्टर दैट क्या होता है कि हम वो जो प्लाज्मिड हमने बैक्टीरियम सेल से क्या कर लिया, आउट कर लिया, उस प्लाज्मिड को क्यों प्लाज्मिड को आउट कर लिया है, प्लाज्मिड के साथ हम जीन अटैच कर लेते हैं, वी अटैच द जीन। ये क्या हम इंसर्ट कर रहे हैं, बाहर से हम जो जीन इंसर्ट कर रहे हैं हम प्लाज्मिड के साथ अटैच कर लेते हैं, और उस प्लाज्मिड के साथ अभी क्या हो गया, हमने वी कैन अटैच द जीन एंड दैट जो जीन एंड प्लाज्मिड कैन इंसर्ट इन द री इंसर्ट इन द बैक्टीरियम सेल। हम उस प्लाज्मिड के साथ जो जीन अटैच है उसको हम क्या करते हैं, वो हम री इंसर्ट कर देते हैं उस बैक्टीरियम सेल के अंदर। तो ये प्रोसीजर होता है जो कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में साइंटिस्ट यूज करते थे, कि हम जीन को इंट्रोड्यूस करा देते थे बैक्टीरियम सेल के अंदर। एक बैक्टीरियम सेल जो होता है वो क्या करता है, टू डॉटर सेल, वो तकरीबन वो टू डॉटर सेल विद इन 20 मिनट्स वो क्या करता है, बना देता है। एक बैक्टीरियम सेल डिवाइड हो जाता है टू फॉर्म टू डॉटर सेल विद इन द 20 मिनट्स। ये बेसिकली किस लिए यूज होता था, ये हम जीन को इंट्रोड्यूस क्यों कराते थे बैक्टीरियम सेल में, ताकि हमारी रिप्रोडक्शन क्या हो, जल्दी हो। ओके जी, हमारी रिप्रोडक्शन जल्दी हो। ओके, हाँ, एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू द टॉपिक डिस्कस इन द चैट प्लीज। Any question related to the topic discussed in the chat? Any question related to the topic discussed in the chat? Please, any question related to the topic? Any question, Ji? Any question related to the topic discussed in the chat, please? Okay, Ji, our class is ended. You have no question. Thank you, Ji. Allah Hafiz.